हमारे त्यागी लोगों का शब्द कभी पीछे नहीं जाता है, हटेगा नहीं, आगे ही जाएगा भिक्षुओं का। इसीलिए उन्हीं को काम करने की शक्ति मिले, आगे देश चलाने की शक्ति मिले, और सभी देश के जितने भी शोषित, वंचित, गरीब, पीड़ित सेवा जिन्होंने जीवन भर की है, उसका फल एक दिन खरगे साहब को जरूर मिलेगा। ये हमारा संकल्प है। उन्होंने बताया कि मैं एक हिंदू परिवार में पला बड़ा। मैंने एक फिल्म की थी श्री सिद्धार्थ गौतम। वो श्री सिद्धार्थ गौतम जब मैंने की तो उस समय मैंने पहली बार भगवान बुद्ध का चरित्र पढ़ा था। सिद्धार्थ कौन थे, क्या हुआ उनके जीवन में, क्या कैसे आगे बढ़े। और जब तैयारी कर रहा था, उनका चरित्र कर रहा था, तो थोड़ा धम्म को भी पढ़ लिया। अब जब धम्म को पढ़ लिया तो इतना इंस्पायर हो गया उसके साथ, तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया जीने का तरीका इस संसार में नहीं हो सकता। उस बुद्धिज्म को लेके मैं आगे बढ़ा, लेकिन अभी कहीं ना कहीं कठिनाइयां कहां आती हैं, यह हम सबको समझना होगा। कठिनाइयां ये हैं कि सब लोग हम एक ही जगह पर जाना चाहते हैं, जय भीम, नमो बुद्धाय सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या हम एक बुद्धिस्ट होने का कर्तव्य निभा रहे हैं? वो सबसे जरूरी है। जय भीम बोलने के हकदार आप तब हैं जब आप बुद्धिस्ट होने का कर्तव्य निभा रहे हैं। हमारे त्यागी लोगों का शब्द कभी पीछे नहीं जाता है, हटेगा नहीं, आगे ही जाएगा भिक्षुओं का। इसीलिए उन्हीं को काम करने की शक्ति मिले, आगे देश चलाने की शक्ति मिले, और सभी देश के जितने भी शोषित, वंचित, गरीब, पीड़ित सेवा जिन्होंने जीवन भर की है, उसका फल एक दिन खरगे साहब को जरूर मिलेगा। ये हमारा संकल्प है। इसी के साथ आज का जो मूर्ति का उद्घाटन हुआ, जो मूर्ति दान दिए, वो सभी महानुभावों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. It is a great privilege and honor to participate in this event. The Buddha's great speech is that ceasing to do evil, cultivating the good, purifying the heart. A disciplined mind brings happiness. In this background, to create a permanent happiness in this area, Buddha statue install ceremony organized by our beloved founder, chairman, leader of opposition party Raj Sabha and AICC New Delhi President Sri Mallikarjun Kharge ji and Matu Sri Radhabhai Kharge ji and the chairman of Siddhartha Vihara Trust Sri Rahul Kharge ji. So on behalf of all, first of all, I welcome you, all the people of this August gathering. Now the program will start with welcome speech by Ishwar Ingan sir. Now I request the Ingan sir to welcome the August gathering. To welcome the gathering, Sri Mallikarjun Kharge ji made a record of establishing the Buddha Vihar in Gulbarga. After establishing, the inauguration was made by Prabhavati Patil. After that, so many activities have been being done here. And after the inauguration of the Buddha Vihar, and before that, Mallikarjun Kharge ji
has not at all told that, and he has not at all has dedicated neither to his father nor to his mother, but he has dedicated this Buddha Vihar to Dr. Baba Saheb Ambedkar. So first of all, that I have to welcome Siddhartha Hatimbre, President, Ashraya Foundation, Maharashtra, Sri Gagan Malik, actor of founder Gagan Malik Foundation, the who are responsible for installing the very beautiful and very good Buddha statue. And here, the 30th, more than 30th, the bhikkhus or the monks have arrived from Indonesia. I too welcome them. Their name I will take here. Miss Yenilim, Mrs. Melina Chandra, Gagan Malik, Siddhartha Hatimbre, Wen Flina, Dr. Fera Achavichana, Thailand, Sri Panna Varo, Mahathera, Indonesia. So this function is organized by the Siddhartha Vihar Trust. So I have to heartily welcome our Amma Radhabai, who is also instrumental in building up this large Buddha Vihar. And here, yes, the people who from Gulbarga, from different areas, streets, they have come here. I have to also welcome them. And moreover, that press persons are also here in this function. I also welcome that all press persons. And I will welcome to Rahul ji, who is the chairman of this Buddha Vihar. Then I will also welcome to the Buddha Vihar's members, Sri Shantappa ji, who is the General Secretary of Karnataka People's Education Society, and also here that our administrator, Chandrasekhar Shilvan, who is here, welcome you, sir. And also more than that, Ramesh Begar, Sri Mallikarjun, executive engineer, and also so many people of Buddha Vihar are responsible for organizing such a grand function here in Buddha Vihar. So once again, I'll welcome all to this Buddha Vihar, the ceremony of the Buddha Puja, Buddha Dhamma, and also one and all that who are responsible for the success of this function. I will welcome you all. Thank you. महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनको सबसे पहले मैं नमन करता हूँ, नम्र अभिवादन करता हूँ। आज के ये जो इंडोनेशिया में से आने वाली 300 कुंटल की तथागत भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति का जो आज अनावरण हो रहा है, इस कार्यक्रम के लिए खास हमारे थाईलैंड से बनते जी आए वाले हैं, वी चरण जी, हमारे अखिल भारतीय भिक्षु संघ के वर्किंग प्रेसिडेंट, महाराष्ट्र से जो आते हैं हमारे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर उपगुप्ता जी महाथेरो, महाराष्ट्र में से उनके साथ में जो हमने ये कार्यक्रम के लिए खास करके बुलाया। आज वर्षावास का कार्यक्रम हर विहार में है, लेकिन मैंने इनको इनविटेशन दिया महाराष्ट्र के भिक्षु संघ को। मैंने कहा कि खड़गे साहब ने इतना आपने भारत में बुद्ध विहार बनाया है और आपका जो वर्षावास है, आप 3 महीना से अपने विहार में याचना कर रहे हो, लेकिन यही विहार खड़गे साहब ने जो बनाया है वो सभी आपने भिक्षु का है, इसलिए आप यहाँ आना चाहिए। तो ये मेरे विनंती में और खड़गे साहब की विनंती से मान देकर आए वाले हमारे पूज्य भिक्षु डॉक्टर प्राचार्य सत्यपाल महाथेरो जी औरंगाबाद से, पूज्य रेवत थेरो जी मानोलकी जी विदर से, भिक्षु पया बोधी
और उनके श्रामनेर जी नांदेड़ से, महाराष्ट्र से, सगानंद थेरो गुलबर्गा से जी, भिक्खू पयानंद थेरो लातूर से, भिक्खू धम्मशरण थेरो औरंगाबाद से, भिक्खू राहुल थेरो औरंगाबाद से, भिक्खू बुद्ध संघ महाथेरो नागपुर से, भिक्खू विवेक थेरो गुलबर्गा से, भिक्खू बोधिथाला त्रिपुरा से, भिक्खू महाप्रजापति बिदर से, भिक्खू संघज्योति जी और हमारा सब श्रामनेर संघ, इनका मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ और इनका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। ये सब बंते जी के लिए आप 3 बार स्वागत करके इनका साधुवाद करिए। साधु साधु साधु। हमारे मंच पर बैठे हुए हमारे माताजी जो हमारा जो हमको आशीर्वाद है करके माताजी का, वो बेटा बोले तो हमारा मन प्रसन्न बन जाता है और वो ऊर्जा मिलती है। वो हमारे मंच में आज बैठे हैं हमारे बड़े भाई और ये सब ट्रस्ट के चेयरमैन राहुल भैया खड़गे जी, हमारे महाराष्ट्र के सिने अभिनेता और जिन्होंने श्रीलंका में तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी का रोल बनाया, 2014 में बौद्ध धर्म स्वीकार किया, ऐसे हमारे गगन मलिक जी है। इनके लिए एक बार अपन स्वागत करना है ताली के साथ, वो भी आपने आज मंच पर है। हमारे इंडोनेशिया के सब गेस्ट, हमारे चाइना से आए वाले गेस्ट, हमारे दिल्ली के मंत्री जिन्होंने 22 प्रतिशत के लिए राजीनामा दिया, ऐसा हमारे राष्ट्रवाद सर, उनका भी मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और एक कार्यक्रम के लिए यहाँ पर मंच पर उपस्थित सब पत्रकार, गगन मलिक फाउंडेशन के पदाधिकारी, मेरे साथ में जो आए वाले परभनी से दुतमल सर, सिंगाड़े जी, भगवान जगताप जी, प्रकाश कांबळे जी, हमारे लातूर से आए वाले कांबळे जी, सब औरंगाबाद से आए कृष्णा भंडारी जी, महाराष्ट्र से बहुत, आज सबके नाम नहीं लेना चाह, सब आए, आपका सबका मैं स्वागत करता हूँ। मुझे यह आज बड़ा आनंद और भाग्यशाली दिन मैं कहूँगा इसको, कि जो खड़गे साहब ने खुद के ताकत से और भारत में जो बाबा साहब अम्बेडकर का 22 प्रतिज्ञा लेने के बाद, धम्म की दीक्षा लेने के बाद बाबा साहब का सपना था कि भारत बौद्धमय करने का, और उसका पाउल जो जिसने करके बताया वो देश में हमारे नेता सिर्फ खड़गे साहब है। गुलबर्गा का जो बुद्ध विहार है वो पूरे इंडिया में कहाँ पर भी किसने भी खुद के खर्चा से बनाया नहीं है। खड़गे साहब ने ये सब मेहनत से और पूरा दिमाग से, और यहाँ पर बाबा साहब का जो अभिप्रेत सपना था कि सब इंस्टीट्यूट यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर पाली भाषा का इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर सब यूनिवर्सिटी स्कूल यहाँ पर है। ये अगर बाबा साहब ने औरंगाबाद में किया, उसके बाद में अगर भारत में किसने किया है तो सिर्फ खड़गे साहब ने किया है, ये मुझे यहाँ पे कहना चाहिए। आज वो व्यस्त कार्यक्रम में रह के भी मैंने रात में माता जी को बताया, राहुल जी को बताया कि सर आना चाहिए हमारे कार्यक्रम में, तो सब व्यस्तता रह के भी सर भी आपने में थोड़ी देर में आने वाले हैं, खड़गे साहब भी। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इंडोनेशिया से 300 कुंडल की जो भगवान गौतम बुद्ध की जो स्टैचू, उसको कम से कम 1 साल लगा। और मैंने गगन जी को ये बताया कि गगन जी ये जो स्टैचू आप ना रहा है वो सही बुद्ध विहार में जाना चाहिए। और हमने दोनों ने ये तय किया कि इंडिया में शौक खर्चा से और स्वाभिमान से जो कौन सा टेम्पल बनाया गया है वो गुलबर्गा में बनाया गया है, और वहीं अपन ये गौतम बुद्ध की मूर्ति देना चाहिए। और मैंने खड़गे साहब के साथ गगन जी को दिखाई मूर्ति, पहले हमारे साहब ने भी, माता जी ने, राहुल जी भैया ने वो मूर्ति पहले जैसा जैसा कंस्ट्रक्शन चल रहा था वैसा हमने इनको बताया। सर ने, माता जी ने और राहुल भैया ने ये सब मूर्ति जब उनको अच्छी लगी, जब ओके बोलने के बाद ये 3 महीने पहले ही अपने टेम्पल में आके रखी थी। और हमारे खड़गे साहब का, हमारे माता जी का कहना था कि अपन ये वर्षावास का जो पूर्णिमा है उसमें कार्यक्रम रहता है, उसके कार्यक्रम के दिन ही अपन इसकी स्थापना करेंगे। इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो आदमी दिल से काम करता है
अभी खरगे बंती जी हमारे उपगुप्त महातेरो है, इनका पूरा महाराष्ट्र और इंडिया में काम है। बंती जी ने बताया कि आने वाले समय में खरगे साहब पीएम बनेंगे। मैं बंते जी को कहना चाहता हूँ, बंते जी खरगे साहब ने ग्राउंड लेवल से आज दिल्ली तक पहुँचे हैं। एक में वो बुद्धिस्ट लीडर हमारा आज बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए संसद में रोज़ झगड़े करता है, आरएसएस के खिलाफ में बात करता है। कोई अगर बुद्धिस्ट लीडर होगा तो सिर्फ और सिर्फ खरगे साहब है। आने वाले पीरियड में खरगे साहब 100% पीएम बनेंगे। ये सबका आशीर्वाद आप बंती जी का आशीर्वाद है, थाईलैंड से बंती जी आए उनका आशीर्वाद है और खरगे साहब की मेहनत है। खरगे साहब मेहनत करके स्वाभिमान से दिल्ली तक पहुँचे हैं। आने वाले समय में खरगे साहब पीएम बने तो हर दलित समाज का, बौद्ध समाज का काम सफल हो जाएगा। जैसा 9 साल में देश में मोदी सरकार आया है, घटना बदलने का काम चल रहा है, उस पर कोई आवाज़ देता होगा तो रात दिन एक ही आदमी देता है। लोकसभा में और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खरगे साहब देते हैं। ये भी मुझे यहाँ पे दिल से बोलना पड़ेगा। आज गगन जी मलिक है, गगन जी मलिक के बारे में भी बहुत कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन मुझे सबको बताना चाहिए गगन जी मलिक हिंदू समाज के रह के भी 2014 में बुद्ध समाज का धर्म स्वीकार कर 84,000 गौतम बुद्ध के स्टैचू इंडिया में बांट रहे हैं। और उनका जो काम है इंडिया में, बाहर के देशों में, अभी तक मैं बताता हूँ, कोई भी अपने समाज के नेता हो या उपासक हो, थाईलैंड बाहर के जो कंट्री के लोग हैं, यहाँ आना जाना जो कब से शुरू हो गया, जब से गगन जी श्रीलंका में बौद्ध धर्म का स्वीकार करके महाराष्ट्र इंडिया में आए, जब से आज आपने ये गुलबर्गा में 3 देश के लोग आए वाले हैं। इंडोनेशिया से है, जर्मनी से है, थाईलैंड से है। ये गगन जी का कोऑर्डिनेटर है, उसके वजह से आज अपन धम्मा का काम महाराष्ट्र के बाहर, इंडिया के बाहर जा रहा है। मुझे यह बताना है। मैं ज़्यादा बात नहीं रखूँगा, लेकिन आप सब यहाँ पर आए, मैं सबका स्वागत करता हूँ। और आने वाले समय में भी ये गुलबर्गा में जो खरगे साहब ने बुद्ध विहार बनाए, यहाँ पर पाली भाषा है, ये सब पाली भाषा के इंस्टीट्यूट हमने गगन जी ने और हमने देखे हैं। वो सब पाली भाषा के इंस्टीट्यूट आने वाले समय में स्टार्ट होने वाले हैं, ये भी मुझे आपको बताना है। हम खाली गौतम बुद्ध की मूर्ति का आज अनावरण हुआ तो यहाँ पर नहीं रुकने वाले। ये जो टेम्पल है गुलबर्गा का, जो खरगे साहब ने स्वाभिमान से बनाया है, वो देश विदेश में जाएगा और देश विदेश के हर मेहमान जब इंडिया में आएगा तो गुलबर्गा में आए सिवाय रहेगा नहीं, ये भी मुझे आपको बताना है। ये आज पहला कार्यक्रम है, इसके बाद आगे थाईलैंड से हो, इंडोनेशिया से हो, वियतनाम से हो, हर देश से बंती जी और गेस्ट ये गुलबर्गा के बुद्ध विहार में आएंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सब मिलकर यहाँ 2-3 घंटे से वेट कर रहे हैं। मैं ज़्यादा मेरी बात नहीं रखता, मेरे बाद गगन जी बात करने वाले हैं। लेकिन गगन जी मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे राहुल जी भैया और अम्मा जी आपके साथ बैठे हैं। ये टेम्पल बोध गया के बाद अगर भारत में, बाहर देश में किसका नाम तो होना चाहिए तो सिर्फ ये गुलबर्गा के बुद्ध विहार का नाम होना चाहिए, ये भी मुझे आपको बताना है। इसका जो काम है, नागपुर में बाबा साहब ने दीक्षा भूमि का जो काम किया, उसके बाद 100 खर्चा से अगर किसने तथागत भगवान गौतम बुद्ध का विचार और बाबा साहब का विचार आगे लेने का काम कोई किया है तो सिर्फ खरगे साहब ने किया है, ये भी मुझे बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ अनेक लोग भाषण करते हैं, अनेक लोग बात करते हैं। मैं भी महाराष्ट्र से आता हूँ। 580 किलोमीटर की जब मैंने धम्म यात्रा निकाला, थाईलैंड से 125 बंते जी गौतम बुद्ध की अस्थि थी और मैंने खरगे साहब को बताया कि सर मैं ये धम्म यात्रा निकाल रहा हूँ परवनी से चैत्य भूमि तक 600 किलोमीटर की, और इसको मुझे केंद्र शासन की तरफ से पुलिस और प्रोटेक्शन चाहिए। सर ने 1 मिनट का भी विलंब नहीं करते हुए उनका लेटर देके मेरे धम्म यात्रा को पूरा 580 किलोमीटर का प्रोटेक्शन किसने दिया होगा तो खरगे साहब की वजह से दिया था, ये भी मुझे बताना चाहिए। इंडिया में कभी तक अभी 600 मीटर की धम्म यात्रा नहीं हुई थी। पैदल धम्म यात्रा हमने खुद के भरोसे पे गगन मलिका और मैंने दोनों ने निकाला, और बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपना चैत्य भूमि पर 6 दिसंबर के बाद अगर कोई धम्म का चक्र गतिमान करने का काम कराऊंगा तो हमने करे वाला है, ये भी मुझे बताना चाहिए। खरगे साहब हर बुद्धिस्ट समाज के, हर समाज के लोग के आगे चलते हैं। और ये आज टेम्पल का उद्घाटन ये सब भंती जी अपने साथ में आए हैं, वो सबका मैं सहर्ष स्वागत करके मैं यहाँ पे मेरी बात
खत्म करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आज खरगे साहब के विहार में आया हूं, तो इस विहार से जो आवाज जय भीम की है वो इंडोनेशिया तक पहुंचनी चाहिए। जय भीम। अभी मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ, मैं यहाँ पे विहार में। सबसे पहले मैं हमारे वरिष्ठ जो भिक्खु हैं, मैनेबल अजान विषयान थाईलैंड से आए हैं, उनको अपना आदर प्रकट करता हूं, और बनते उपगुप्त जी, उनको अपना आदर प्रकट करता हूं, और बनते बुद्ध घोष जी और बाकी जितने भी संघ है, मेरा आपको मैं आदर सम्मान प्रकट करता हूं। यहाँ पर आज मेरी पहली बार मुलाकात हुई है, तो एक माँ की फीलिंग आई है, तो माता जी को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी एक अपने आप में एक अनोखा नाम है, सबके दिल के करीब है, तो कहीं ना कहीं वो बुद्ध के बेटे ही हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। सिद्धार्थ जी को ये पॉलिटिक्स में है, मैं नहीं हूँ, तो इनको मैं धम्म की ओर खींच के लेके आया। मैंने कहा कि अब पॉलिटिक्स करें, लेकिन साथ में धम्म का काम आपका कर्तव्य है, वो भी करना एक बुद्धिस्ट होने के नाते। तो उनको लेके क्या आया, उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया कि मैंने उनको महाउपासक की उपाधि भी दे दी है कि महाउपासक है। हमारे जितने गेस्ट आए हैं, यानी लिम जी, मेलिना चंद्रा, थीन, माइकल और बाकी जितने भी लोग हैं, उनको भी आदर सम्मान देता हूं, और जिनके बिना मैं अधूरा हूं, ओ सर, एक हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी, जो कि सबसे स्ट्रांग और सच्चे बुद्धिस्ट का प्रतीक है हमारे देश में, उनको भी आदर सम्मान करता हूं। जिनके बिना मैं अधूरा हूं, मैं जो भी आप कार्य देख रहे हैं, चाहे ये कार्य कुछ भी आप मेरा देखते हैं, वो मेरे जो भाई और बहन जो मेरे सबसे दिल के करीब हैं, वो मेरे फैमिली मेंबर से बढ़कर हैं, वो मेरे गगन मलिक फाउंडेशन के सारे मेंबर हैं। एक बार आपको भी सम्मान करता हूं, खड़े होकर आप एक बार दिखा दें। वो भी आज हमारे बीच में है। देखिए, मैं खरगे साहब से पहली बार मिला था तो मैं भिक्खु के रूप में मिला था। मैं उस समय भिक्खु बना हुआ था थाईलैंड में, और हम सारे भिक्षुओं के साथ, सिद्धार्थ जी के साथ उनसे मिलने गए थे। अब भिक्खु थे तो सब आशीर्वाद देने गए थे, तो मुझे अच्छा लगा। तो उसके बाद वो आशीर्वाद भी बहुत अच्छा लगा। आज वो इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन के प्रेसिडेंट भी हैं, ये बात भी अच्छी थी। उस समय नहीं थे, उस बात आशीर्वाद लगा उनको। पहली मुलाकात में ही मुझे बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट आया कि सर बुद्धिज़्म के काम करने को लेकर बहुत इंटरेस्टेड है। तो उन्होंने मुझे इस विहार की बात की कि एक बार हमारा गुलबर्गा में विहार है, उसको आप एक बार देखो तो बहुत अच्छा लगेगा आप। मैं जब इस विहार में आया, मैं इस सोच में पड़ गया कि इतना सुंदर बड़ा विहार, और यहाँ अभी तक इंटरनेशनली लोगों को मालूम क्यों नहीं है, यहाँ पर तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, तो ऐसा क्यों नहीं है। तो मैं आया और उसी दिन से मैंने ये ठान लिया और साहब को अपना वचन भी दे दिया कि बहुत जल्द हम बड़ी सारी चीज़ों की इंटरनेशनल लेवल पे इस विहार पे सारी नई नई चीज़ें, नए नए सेरेमनीज करनी शुरू करेंगे कि इस विहार को विश्व प्रसिद्ध विहार हम बना देंगे। इस बात का वजह उन्होंने बताया कि मैं एक हिंदू परिवार में पला बड़ा। मैंने एक फिल्म की थी श्री सिद्धार्थ गौतम। वो श्री सिद्धार्थ गौतम जब मैंने की, तो उस समय मैंने पहली बार भगवान बुद्ध का चरित्र पढ़ा था। सिद्धार्थ कौन थे, क्या हुआ उनके जीवन में, क्या कैसे आगे बढ़े। और जब तैयारी कर रहा था, उनका चरित्र कर रहा था, तो थोड़ा धम्म को भी पढ़ लिया। अब जब धम्म को पढ़ लिया तो इतना इंस्पायर हो गया उसके साथ, तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया जीने का तरीका इस संसार में नहीं हो सकता। और दुख की बात यह है कि हमारे स्कूल में कभी इस बात की शिक्षा ही नहीं दी गई कि बहुत सारे मैंने लोगों को पढ़ा, लेकिन मैंने अपने स्कूल में कभी भी बुद्ध के बारे में सिर्फ नाम पढ़ा, लेकिन उनके बारे में, उनके धम्म के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में कुछ हमारे स्कूल में तो कुछ था ही नहीं। जबकि बहुत ए ग्रेड का स्कूल है। तो बाकी जो ए ग्रेड के स्कूल हैं वो सारे आप देखते हैं क्रिश्चियन बेस हैं, दूसरे हैं जिसमें बच्चा इंग्लिश बोल ले तो हमारा बच्चा सबसे ज्यादा पढ़ लिख गया।
मैंने ए ग्रेड स्कूल, उस लेवल का ए ग्रेड स्कूल, एकेडमिक स्कूल जो बुद्धिस्ट बेस हो, अभी तक नहीं देखा। तो जिस दिन साहब और राहुल जी के साथ मुलाकात हुई है, पहली मांग मेरी यही होगी कि भारत का सबसे बढ़िया ए ग्रेड एकेडमिक स्कूल बनाया जाए जो उसका बेस जो है वो बुद्धिस्ट हो। मैंने बहुत सारी प्रेयर सुनी है, क्रिश्चियन लोग अपनी प्रेयर करते हैं स्कूल में, हिंदू में अपनी प्रेयर्स होती हैं, मुस्लिम में अपनी होती हैं। तो मेरे कान तरस रहे हैं सर कि एक दिन मैं सुनूं कि सुबह स्कूल जाऊं जहां 4-5 हज़ार बच्चा पढ़ रहा हो और वो शुरुआत करे नमो तत्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्मा। बुद्धिज्म एक ऐसी चीज है जो वाकई में आपको आईना दिखाती है। वो गाड़ी चलती है तो आगे कई बार शीशे के आगे गंद आ जाता है, कुछ से सही नहीं दिखाई देता, तो एक वाइपर चलाते हैं ना साफ करने के लिए, तो बुद्धिज्म वो काम करता है। आपकी जिंदगी के आगे धूल मिट्टी है, वो वाइपर का काम करता है, सब कुछ क्लियर दिखेगा, कोई अंधविश्वास की जगह नहीं, बुद्धिज्म का काम है। उस बुद्धिज्म को लेके मैं आगे बढ़ा, लेकिन अभी कहीं ना कहीं कठिनाइयां कहां आती हैं, ये हम सबको समझना होगा। कठिनाइयां ये हैं कि सब लोग हम एक ही जगह पर जाना चाहते हैं, जय भीम नमो बुद्धाय सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या हम एक बुद्धिस्ट होने का कर्तव्य निभा रहे हैं? वो सबसे जरूरी है। जय भीम बोलने के हकदार आप तब हैं जब आप बुद्धिस्ट होने का कर्तव्य निभा रहे हैं। बुद्धिस्ट होने के बहुत सारे कर्तव्य हैं। पंचशील तो हम बोल ही रहे हैं, पंचशील में भी मुझे लगता नहीं है कि कोई आचरण में पंचशील करता होगा, कोई विरला ही होगा जो शायद 5 शील को यहां फॉलो करता होगा, वो मैं भी उनमें से एक हूं, तो बहुत मुश्किल। आप कितना धम्म का आचरण कर रहे हैं वो आपको बुद्धिस्ट बनाता है। बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार कितना कर रहे हैं वो आपको ये बनाता है, बुद्धिस्ट बनाता है। मैं कई बार विहारों में जाता हूं, मैं छोटे छोटे विहारों में गया मूर्तियां बांटने के लिए, उन्होंने बताया 84,000 मूर्तियां बांटने की। वहां जो लोग मेरा सत्कार करने के लिए आए वो बहुत अच्छे से तैयार होकर आए, जैसे आप तैयार होकर आए, कितने सुंदर लग रहे हैं, सबने व्हाइट कपड़े पहने हैं एकदम, लेडीज ने भी बहुत अच्छा सब कुछ पहना है। लेकिन उनके जो विहार था, उसके विहार में कॉर्नर में जाले पड़े हुए थे, खिड़कियां टूटी हुई थी, पेंट उखड़ रहा था। तो मैंने उनको कहा कि आपके बुद्धिस्ट होने की पहचान आपके कपड़े नहीं है, आपका विहार कैसा है ये आपके बुद्धिस्ट होने की पहचान है। वहां से मुझे पता चला कि आप कितने सच्चे बुद्धिस्ट हैं। ये जो चीजें हैं ये हमें अपने जहन के अंदर डालनी है। आप जब कोई कार्य ऐसा रहता है कि बाबा साहब की बात आती है तो बाबा साहब हम सबके हैं, आप भी बोलते हैं बाबा साहब मेरे, बाबा साहब हमारे, लेकिन जब कोई धम्म का कार्य आता है तो हम बट क्यों जाते हैं? धम्म का कार्य तो किसी का भी वो कार्य होगा तो वो हमारा ही कार्य होगा। जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि हर धम्म का कार्य हमारा कार्य है, तो आप ये समझ जाना उस दिन वो बौद्धमय भारत का जो बाबा साहब का सपना है उसकी ओर हम चल पड़े। जिस दिन हम ये सोचना शुरू करेंगे, खाली कहने से बौद्धमय भारत नहीं हो जाएगा। बौद्धमय भारत की अगर बात करते हैं तो हमें काम करने पड़ेंगे, जेनरस होना पड़ेगा। अरे कल को कोई एक ऐसी बात आती है कि आप जानते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, बड़ी अच्छी बात। मैं भिक्खू बनने गया था थाईलैंड में, तो मुझे कहा गया कि सुबह 6:30 बजे उठना है नंगे पांव और बैंकॉक जैसी सिटी में भिक्षा मांगने जाना है, भिक्षा पात्र लेके। अब एक एक्टर जो है जिसको लाइमलाइट में रहने का शौक है, वो एक भिक्खू बना। भिक्खू बन के सुबह जो है 6:30 बजे ये सोच के बाहर निकला कि इतनी बड़ी सिटी में मुझे भिक्षा में कौन क्या देगा यहाँ पर। लेकिन मैं जैसे टेम्पल के विहार के बाहर निकला तो वहां पर 250 लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। करीबन 250 लोग इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि भारत से कोई एक लड़का ऐसा एक्टर आया है जो कोशिश कर रहा है कि भारत में बुद्ध वापस लाने की, उसका साथ हम देना चाहते हैं। बात यहां तक पहुंच गई कि आज हम इतना काम कर चुके हैं कि थाईलैंड की सारी भिक्खु संघ हमारे साथ कहती है कि हम तन मन धन से आपके साथ हैं, हम जो भी करना चाहे आप हमें बता दीजिए। ये कंडीशन यहां पर हमारी आज की तारीख में वो वहां पर पैदा हो गई। थाईलैंड के लोगों से पूछा मैंने, आप इंडिया गए हैं? हाँ, कोई 5 बार गया, कोई 6 बार गया, कोई 10 बार गया, लेकिन गया कहां? गए कहां है? बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर। वही भारत है उनके लिए, वही भारत के बुद्धिस्ट है उनके लिए, जो वहां पे उनको कोई दिख जाते हैं जो कि ना के बराबर दिखते हैं। उनका रुख बदला गया,
उनका रुख बदला, उनको महाराष्ट्र दिखाया, उनको दीक्षा भूमि दिखाई, उनको जो भारत के असली सच्चे बुद्धिस्ट हैं उन्हें दिखाया गया, तब जाके उनकी आंखें खुली हैं। और आज वहां का भी भिक्षु जब हमारे किसी कार्यक्रम में आता है तो वो भी अपना कार्यक्रम नमो बुद्धाय जय भीम बोलकर शुरू करता है। उसको बोलना, उसका असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ कि वियतनाम से भिक्षु आकर वो मंजर देख के हैरान हो गए, और वहां जो कम्युनिस्ट कंट्री है उन्होंने अनाउंस कर दिया कि बाबा साहब की हम वियतनाम जैसे देश में 10 बड़ी मूर्तियां हम लगाएंगे, ये हमारा वादा है। तो मुझे लगा वादे तो बहुत लोग करके जाते हैं, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। 3 मूर्तियां उन्होंने वियतनाम में बाबा साहब की लगा दी आज की तारीख में, जो हमने शेयर किया। अब आप लोग यहां पर इकट्ठे हुए, देखिए आज इतने सारे लोग आए हैं। मैं नहीं जानता कि इसमें कुछ लोग पॉलिटिकल हैं जो आए हैं, कुछ लोग बुद्धिस्ट हैं जो आए हैं, कुछ कैसे हैं, लेकिन आप याद रखिए ये इंडोनेशिया, मतलब इनको यहाँ पहुँचते पहुँचते 12 घंटे का सफ़र, कई परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें झेल के ये भी पहुँचते हैं कि हमें वहाँ पर आना है। ये लोग आए, हम आए, सर साथ दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों के बिना ये कदम आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज राहुल सर यहाँ पर हैं, माता जी आई हैं, और खड़गे साहब खुद इतने व्यस्त स्केड्यूल से आज यहाँ पर आने वाले हैं। इतना बड़ा सौभाग्य की बात है कि वो इस काम के लिए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि मैं राहुल सर से कहूँगा कि एक दिन बांध लें कि उस एक दिन इस पूरे एरिया का कोई भी बुद्धिस्ट वो दिन मिस नहीं करेगा। यहाँ पर इस विहार में दर्शन करने, चैंटिंग करने, बात करने जरूर आएगा। भाई क्रिश्चियन लोग संडे को चर्च जाते हैं, मुस्लिम लोग जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने जाते हैं, हिंदू लोग को सारे देवताओं के हर एक दिन है, उनके तो 7 दिन है। बुद्धिस्ट लोगों को संडे का दिन होता है कि कभी चले गए तो कभी नहीं चले, कभी ऐसे कभी ऐसे। तो हम ये चाहते हैं कि हर बुधवार के दिन, जिस दिन बुधवार था जिस दिन वो बुद्ध बने थे, तो मैं चाहता हूं कि बुधवार का दिन तय कर लें कि यहाँ पे आना जाना, इस विहार को कैसे बड़ा बनाना है। बाहर के लोगों से खाली बड़ा नहीं बनेगा, आप लोग इसे बड़ा बनाएंगे। इसीलिए हम यहाँ पे आए, और कोई काम नहीं। उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, बुद्धिज्म के लिए आज मैं सर के सामने भी बात बोलता हूं। कोई आदमी जो बुद्धिज्म के बारे में ज्ञान लेना चाहता हो, बाहर थाईलैंड जाना चाहता हो, भिक्षु बनना चाहता हो, कोई अगर बहुत अच्छा बच्चा है जो 12वीं कर चुका है, उसको स्कॉलरशिप में बाहर जाना है, वो सारे हमारी फाउंडेशन को कनेक्ट करें। हम उनको ये कार्रवाई स्कॉलरशिप दिलवा के बाहर पढ़ने के लिए भी भेजेंगे उनको बुद्धिज्म के लिए। लेकिन बशर्ते आप लोग आगे आने चाहिए। दिसंबर 20 से लेके जनवरी 20 तक, अभी उन्होंने धम्म यात्रा की बात की कि धम्म यात्रा हुई, लाखों लोग इकट्ठे हुए मुंबई से परभनी में। सच्चाई है, वो मंजर मैंने भी देखा। मुझे लगा कि धम्म यात्रा निकली है तो शुरुआत में 25-30 हजार लोग थे, ज्यादा थे जब परभनी से चली। तो मेरे मन में एक बात आई, मैंने कहा कि अगर चैत्य भूमि तक 1 लाख लोग साथ में जुड़ गए तो मैं समझूंगा कि मेरे पास वो आशा की किरण है बौद्धमय भारत की। लेकिन मजा तो तब आया कि जब चैत्य भूमि पहुंचते पहुंचते 5 लाख लोग सड़क पर चल रहे थे। मंजर ये लगता, तो कहीं ना कहीं कोई कमी है जो हमें जुड़ने नहीं दे रही। तो उस कमी को आप पहचानना शुरू करो। मैं बुद्धिज्म का काम करूंगा तो कुछ ताकतें आ जाएंगी। गगन आरएसएस का है। अच्छा, रोल मैंने सारे भगवानों के रोल किए हैं। एक एक्टर हूं ना, भगवान राम का भी रोल मैंने सब जगह मैंने किया हुआ है, वो मेरी एक्टिंग का पार्ट है। तो लोग टांग खींचते हैं। तो इसलिए आपको समझदार बनना है कि किसकी रील की जिंदगी में क्या है और उसकी असल जिंदगी में क्या है। ये मेरी असल जिंदगी है, वो मेरी रील की जिंदगी है। तो अब मैं यही चाहता हूं कि आप सभी लोग आज ये मन में, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, एक वादा करें कि यार इस इतना बड़ा विहार हमें यहां पर दिया गया है, इसका यूटिलाइजेशन हमें कैसे करना है, किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है, ताकि एटलीस्ट गुलबर्गा में एक कुछ शुरुआत, बौद्धमय भारत की शुरुआत दिखनी शुरू हो जाए कि यहाँ पे एक किरण जलनी शुरू हो गई है। उसी के लिए आज यहाँ पर भगवान बुद्ध आए हैं और आने वाले समय में धम्म पीछे पीछे फॉलो करने वाला है। 20 दिसंबर से जनवरी 20, मैं बता रहा था धम्म यात्रा हमने निकाली, इतने लोग आ गए, लेकिन पैदल कौन चला? थाईलैंड के भिक्षु।
जब भी भारत में कोई कार्यक्रम होता है बुद्धिज्म का, बाहर के लोग चल रहे हैं, थाईलैंड के भिक्खु आ रहे हैं, श्रीलंका के भिक्खु आ रहे हैं, वियतनाम के भिक्खु आ रहे हैं। अच्छा, उन्होंने ऐसा कर दिया, भाई भारत से तो उनके पास गया बुद्धिज्म, बुद्ध तो भारत के हैं, तो भारत के भिक्षु आप कहां हैं? तो इसीलिए पहली बार हमने ये तय किया कि यहां से हम टोटल 100 लोगों को, जिसमें 47 भिक्षुओं को और टोटल 100 लोगों को भारत से थाईलैंड लेके जाएंगे और उनसे वहां पर धम्मा यात्रा कराएंगे, दिखाने के लिए कि हम बुद्ध की भूमि से आए हैं, हम भी चाहते हैं बुद्ध हमारी भूमि में वापस आए। उसमें भी कोई अगर जाना चाहेगा तो हमारी फाउंडेशन से एक बारी बात कर लेगा, उसको भी हम 1 महीने के लिए थाईलैंड अपने साथ लेकर जाएंगे। लेकिन जाना वो जो सीखने की चाह से जाए। कहीं थाईलैंड का नाम वैसे भी काफी बदनाम है, तो वो सोच से मत जाइएगा। वहां की एक बहुत खूबसूरत साइट है जो बुद्धिज्म की है। अगर आप वो जिसने नहीं देखी, शायद उसने बुद्धिज्म देखा ही नहीं है। मैंने अपनी आंख से देखा है, उसे फील किया है। तो चलिए आज एक नई शुरुआत करते हैं। मैंने कहा है कि ये नई शुरुआत की बात है जो आने वाले समय में होने वाली है, और अगला कार्यक्रम जब होगा तो मैं चाहूंगा कि आज यहां से 20-25 लोग आए हैं, कल 100 लोग बाहर से आए, 200 लोग बाहर से आए, और उन 200 लोगों के साथ भारत के 400 लोग जुड़े, ताकि 600 लोग मिलके एक बुद्धिज्म को बढ़ावा देते हुए ये दिखा दें कि अब भारत के पास या पूरे संसार के पास अब और कोई विकल्प नहीं रह गया। आप देखना, केवल और केवल बुद्धिज्म ही पूरे भारत में फैलना चाहिए और फैलेगा। जाने से पहले सर, लास्ट बात, एक और मेरी रिक्वेस्ट है, आप पावर में आए, एक नई शुरुआत मैं चाहता हूं कि अगर साहब, हम तो दुआ करते हैं, मुझे उन पे इतना विश्वास है, वो बुद्धिज्म को इतना सपोर्ट करते हैं, बातों से नहीं कार्यों से। कई लोग ऐसे भी हैं हमारे बड़े वरिष्ठ नेता जो बातों से करते हैं लेकिन वो कार्य से नहीं करते। सब कार्य से करते हैं, बातों से नहीं। उन्होंने एग्जाम्पल सिद्धार्थ जी ने दिया। क्या है कि हमारे जितनी पढ़ाई है, उस पढ़ाई में इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, ये सारों को बहुत वो दिया गया है, स्ट्रॉन्ग सेटअप, कि भाई इसकी वैल्यू दी गई है उसको, कि हाँ इंग्लिश, मैथ सब। मैं ये चाहता हूँ एक नया सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके लिए चाहे भारत पहला देश बने, वो सब्जेक्ट इशू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, जिसकी अहमियत उतनी ही हो जितनी बाकी हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स या साइंस की है, जिसका नाम आप करुणा और मैत्री का सब्जेक्ट देकर करें। जब बच्चा, अगर बच्चा छोटा है 4-5 साल का, अगर उसको पता होगा मुझे ये भी, इसके भी नंबर मेरे आगे बढ़कर गिने जाएंगे 10वीं में, 12वीं में, कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो वो मैत्री, करुणा, शांति, इन तीनों चीजों का कंबाइन करके पढ़कर आगे निकलेगा। और ये 3 चीज ऐसी हैं जिसको इस पूरे संसार का कोई भी धर्म नकार नहीं सकता, ये जो बुद्ध ने दिए हैं। तो जब बच्चा उससे आगे बढ़ेगा तो वो बच्चा लाखों में एक दिखेगा। तो एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत होनी चाहिए, एक नया बदलाव लाने के लिए। उसके लिए मैं सब सर उस सेटअप में होंगे पावर में, तो आपसे सर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इसकी कोशिश आप करिए। एक बार फिर से, आप नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, तो हमारी भी कोई वैल्यू नहीं है अगर आप साथ नहीं देंगे, या 5 लाख लोग धम्म यात्रा में नहीं आएंगे, आज हजारों की तादाद में आप यहां नहीं आएंगे सपोर्ट करने के लिए, तो शायद हम 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका मैं दिल से सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना कर्तव्य निभाएंगे। एक लास्ट बार, नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।